Good morning, all of you student. We have discussed Hindi medium students chemistry up to what now we um, teach English medium students uh, because in Dholpur district and Bharatpur district are more problem for English medium student in teach of chemistry. Thus, we solve this problem easily. First time we discuss the solution chapter. Solution. Solution is a homogeneous mixture which made by mixing of two or more than two components. Another definition of solution: those homogeneous mixture which are prepared by combination of solvent and solute. Okay. Thus, solution is a homogeneous mixture. Solution: those homogeneous mixture which make by combination of two or more than two substances, which is called solution. सॉल्यूशन रियल में होमोजीनियस मिक्सचर होता है. ठीक है. Another definition of solution: those homogeneous mixture which make by mixing of solvent and solute. Those homogeneous mixture which make by mixing of solvent and solute, which is called solution. Okay. Really, solution is a homogeneous mixture. Homogeneous mixture क्या होता है? Those mixture which have same physical and chemical composition and seen as same like. Okay. For example, sugar containing dilute solution, glucose containing dilute solution, salt containing dilute solution. ठीक है. Above are solution assume as transparent. Each are homogeneous mixture और solution. Really homogeneous mixture को ही solution कहेंगे. ओके. इसके बाद इसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ. तो 20 ग्राम शुगर डिजॉल्व इन 500 ml वाटर. 20 ग्राम शुगर डिजॉल्व इन 500 ml वाटर to give transparent homogeneous mixture or solution. Here 20 gram sugar is solute, but 500 ml water is solvent. Okay. 20 ग्राम शुगर को हमने 500 ml वाटर में डिजॉल्व कर लिया, तो वो गुड तरीके से डिजॉल्व होने के बाद ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा. और ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मिक्सचर इज आल्सो नोन एज सॉल्यूशन. Okay. Now we discuss the components of solution. Two components are used of solution. Main component solvent first and another component solute. Main component of solution क्या होता है? Solvent होता है. और another component यानी second component क्या होता है? Solute. Okay. Go ahead. We discuss the solvent. सॉल्वेंट ये सॉल्यूशन का मेन कंपोनेंट होता है, मोर अमाउंट में होता है. ठीक है. इसको डेफिनेशन कैसे देंगे? दैट कंपोनेंट ऑफ solution which use in more amount. ओके. सॉल्यूशन का ऐसा कंपोनेंट जो मोर अमाउंट में यूज हो उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे. ठीक है. इसके बाद हम सेकेंड सॉल्यूट पर डिस्कस करते हैं. ये सॉल्यूशन का ऐसा कंपोनेंट है जो आउटसाइड से
लेस अमाउंट में डिजॉल्व किया जाता है, आउटसाइड से लेस अमाउंट में डिजॉल्व किया जाता है। दैट कंपोनेंट which use in less amount and dissolve from outside, मतलब आउटसाइड से इसको बाहर से इसको डिजॉल्व करते हैं। ओके, इसको आउटसाइड से बाहर से डिजॉल्व करते हैं, लेस अमाउंट में इसको यूज करते हैं, ये सॉल्यूट होगा। इसको हम एक सिंपली एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं। वन कंटेनर विच फिल अप बाय 500 ml वाटर, one component which fill up by 500 ml water, in which 20 gram sugar dissolved from outside in less amount. Thus 20 gram sugar is behave as solute and 500 ml water is behave as solvent. Thus we clear in solution more amount सॉल्वेंट का, लेस अमाउंट सॉल्यूट का यूज होता है। ओके, 20 ग्राम शुगर डिजॉल्व हो जाएगा 500 ml वाटर में, तो ये दोनों ही ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मिक्सचर प्रिपेयर करेंगे, और ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मिक्सचर जो प्रिपेयर होगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ओके, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा यहाँ तक। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसको बता रहा हूँ। आगे हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स सॉल्यूशन में 2 ही होते हैं, सॉल्वेंट, सेकंड सॉल्यूट। ऑलवेज अटेंशन, सॉल्वेंट ओनली 1 यूज होगा, सॉल्यूट 1 और मोर देन 1 यूज हो सकते हैं। ओके, इफ सॉल्वेंट यूज 1 एंड सॉल्यूट यूज 1, 2 कंपोनेंट हुए तो बाइनरी सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्वेंट 1 एंड 2 सॉल्यूट 3 कंपोनेंट हो गए, ट्राइनरी सॉल्यूशन बनेगा। 1 सॉल्वेंट एंड 3 सॉल्यूट 4 कंपोनेंट हुए, ये टेट्रानरी सॉल्यूशन बनेगा, और पॉलीनरी सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। ध्यान रखना, ऑलवेज इन सॉल्यूशन सॉल्वेंट यूज 1 कंपोनेंट, सॉल्वेंट 1 कंपोनेंट के रूप में ही यूज होगा, सॉल्यूट 1 और मोर देन 1 यूज हो सकते हैं। ओके, thus type of solution on the basis of number of components, this is divided in 3 types. First, binary solution। binary solution में क्या होगा, 1 solvent plus 1 solute, 1 solvent plus 1 solute are mixed to each other to give homogeneous mixture, which is called binary solution. 1 solvent and 1 solute are mixed to each other to give homogeneous transparent solution, which is called binary solution. इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे तो वाटर में थोड़ा सा क्या घोल डिजॉल्व करो, शुगर डिजॉल्व कर दो, ठीक है, सॉल्ट डिजॉल्व कर दो, ये इस तरह से डिजॉल्व कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा बाइनरी सॉल्यूशन। इसके बाद ट्राइनरी सॉल्यूशन पर डिस्कस करते हैं। ट्राइनरी सॉल्यूशन 1 सॉल्वेंट
1 सॉल्वेंट प्लस 2 सॉल्यूट। मैंने आपको बताया ये ऑलरेडी सॉल्वेंट यूज 1 व्हाट सॉल्यूट 1 और मोर देन 1 और मोर देन 1। अब यहाँ 2 सॉल्यूट एंड 1 सॉल्वेंट यूज हो रहे हैं। ओके, तो 3 कंपोनेंट्स हो गए, तो ये ट्राइनरी सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या होगा, वाटर में शुगर प्लस ग्लूकोज। वाटर में शुगर एंड ग्लूकोज, इनको हम डिजोल्व करें तो वाटर यहाँ सॉल्वेंट हो गया, शुगर और ग्लूकोज सॉल्यूट हो गए। सॉल्यूट की नंबर कंपोनेंट 2 हो गई, वाटर की 1, टोटल कंपोनेंट 3 हो गए, तो एक ट्राइनरी सॉल्यूशन हो गया। टेट्रानरी सॉल्यूशन में क्या देखेंगे, टेट्रानरी सॉल्यूशन में 1 सॉल्वेंट एंड 3 सॉल्यूट, 1 सॉल्वेंट एंड 3 सॉल्यूट टेट्रानरी सॉल्यूशन होगा। इस टेट्रानरी सॉल्यूशन को हम आगे पॉलीमरी सॉल्यूशन की कैटेगरी में भी रखते हैं। किसकी कैटेगरी में रखते हैं, पॉलीमरी सॉल्यूशन की कैटेगरी में भी इसको रखते हैं। तो यहाँ तक आपको ये मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, नेक्स्ट वीडियो हम आगे लेके आएंगे।